Karman also joined. Good morning, all. Good morning, Vinod sir. Welcome, Dr. Welcome, Dr. Rajesh Bagga, Director, APJ Institute of Management and Engineering Technical Campus. So 60 participants have joined right now. So we will start the webinar in 2 minutes. So I think as soon as the 100+ attendees will be there, we should start. We are already late by 2-3 minutes. In case during the webinar, students, they want to ask any of the queries, want to ask any questions, they can raise their questions in Q&A. And Deoraji, please take care of question and answer in case it is to be taken up in the end. I think around 40 to 45 minutes are being allocated for this webinar. Around 80+ attendees have been joined, so we may start the webinar. Director sir. So please go ahead. I think we should start now. Karman, please start. Good morning, teachers and friends. I am glad to share with all that our director, sir, Dr. Rajesh Bagga, has also joined us for the session. Today, we welcome Dr. Vinod, who is a yoga expert since 1991. Dr. Vinod is known for how interesting he conducts the yoga classes. Dr. Vinod is well praised for making yoga an enjoyable activity. Yoga is not new to us. When we think about yoga, we link it to physical activities basically. But the truth is that yoga is deeper. It is about yoga is about having a healthy mind and a soul in a healthy body. Yoga is not just about exercising, but about relaxing. Yoga is a truly spiritual exercise that gives numerous benefits related to our health, mind, and soul. It also provides a flexible and disease-free body and lets you live to the fullest. And in this COVID pandemic, yoga is a blessing for all. So now I request Dr. Vinod to begin with today's yoga session. Thank you, Madam. Dr. Sir, I will not take more than 1 minute. Reason being, we all are interested in the various techniques and tactics which you are going to discuss during this 35 to 40 minutes presentation. So on behalf of all the fraternity of APJ Institute of Management and Engineering Technical Campus, faculty, students, we welcome you at this platform. And I am aware of this fact. Before the lockdown, you conducted a really very good session offline on yoga practices, and we are glad to have that session. And definitely during this session, we will be enjoying a lot with your techniques and tactics with regard to yoga. But during the pandemic time, this is really a need of the hour, and I must say, right now, emotional, physical, mental health, it is an essential ingredient in order to cope up with this COVID pandemic. And definitely yoga is a one step towards this direction, that one can maintain their mental and physical health. And definitely we will be benefited from your this 30 to 45 minutes of presentation. Thank you so much once again on behalf of entire APJ. Sir, please go ahead. Thank you so much for sparing your time as well. थैंक यू जी, शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। योग जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साइंटिफिक प्रैक्टिस एंड सोशल प्रैक्टिस एंड यूनिवर्सल प्रैक्टिस, और नॉट ओनली फिजिकल प्रैक्टिस। तो 4-5 बातें मैंने बोली। इट इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और सोशल प्रैक्टिस है, साइंटिफिक प्रैक्टिस है, और यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। सब तरह के, सब धर्मों के, सब भाषा के लोग इसको करते हैं।
वही चीज सबको अच्छी लगती है जो जो जिसका फायदा हो, उसी को लोग, जैसे मार्शल आर्ट को कई लोगों ने बनाया, कुंग फू को बनाया कि है ना, की एनर्जी को जगाने के लिए, ची एनर्जी को जगाने के लिए और वाइटल एनर्जी को जगाने के लिए। और यहाँ पर हमारे हिंदू संस्कृति में प्राण बोलते हैं, तो प्राण को सक्रिय करने के लिए ऐसा माना जाता है कहीं भी कोई रोग है तो प्राण की निष्क्रियता और प्राण की पूर्ति ना होने से होते हैं। प्राण क्या है, जिससे हम, जैसे लाइट जल रही है तो इसमें बल्ब भी है, तारे भी हैं, सब कुछ है, अगर पीछे से एनर्जी नहीं है, करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी चलते नहीं है। किसी व्यक्ति की मान लो आंखें भी बहुत अच्छी हैं, कान भी बहुत अच्छे हैं, जीभ भी अच्छी है और हाथ पैर भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें अगर वाइटल एनर्जी नहीं है तो उन्हीं आंखों से वो कभी देख भी नहीं पाता है, सुन भी नहीं पाता है। तो प्राण को सक्रिय करने को प्राणायाम और फिजिकल जो पोस्चर्स होते को उसको आसन, और मेंटल पीस के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, और इन सब को मिला के अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए। तो आप में से जो लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, जितने बच्चे हैं जो भी हैं, तो उसमें से हम शुरुआत करेंगे प्राणायाम से। प्राणायाम हर बंदा हर जगह कर सकता है, किसी भी समय बैठ जाइए, मेरे सामने कुछ लोग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डेमो भी साथ साथ देते रहेंगे। सबसे पहले प्राण को आयाम देना, प्राण का आयाम प्राणायाम कहलाता है। हिंदी वर्ड है, इसको अगर सेपरेट करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, प्राणायाम। तो प्राणायाम मतलब हमारे अंदर एक एनर्जी है, उसको कहते हैं माइक्रो एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी, उसको बोलते हैं मैक्रो एनर्जी। संस्कृत में व्यष्टि और समष्टि बोला जाता है। तो व्यष्टि को समष्टि से जोड़ना है हमने, जैसे अपने घर की लाइट को पावर हाउस की लाइट से जोड़ के तो सारे इंस्ट्रूमेंट चलने लगे, लाइट जलती है, पंखा चलता है ना। इसी तरह से ठंडा भी, टेम्परेचर एसी ठंडा कर देता है, हीटर गर्म कर देता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, लेकिन एनर्जी पीछे से एक आ रही है। तो प्राणायाम का मीन्स वाइटल एनर्जी का एक्सपेंशन, माइक्रो एनर्जी को मैक्रो एनर्जी से जोड़ना। कैसे जोड़ना? हम इस पूरे विश्व से सिर्फ प्राण से जुड़े हुए हैं, प्राण से। प्राण में श्वास आता है, श्वास जो बाहर भी है जो अंदर, जैसे पानी के बीच में जीव रहते हैं। ये बात समझने वाली, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। पानी के बीच में जो जीव रहते हैं, बाहर निकालेंगे तो मर जाते हैं बहुत सारे, है ना। हम लोग वायु के बीच में रहते हैं, वायु से बाहर निकलेंगे तो हम मर जाएंगे। उस वायु को हमने डायरेक्शन देनी है, मेथड सीख के। तो हम वायु के जीव हैं, जैसे जल के जीव होते हैं, हम वायु के जीव हैं, ठीक है। तो ऐसे आराम से ज्ञान में बैठा, अंगूठे की साथ वाले उंगली को ऐसे जोड़ने से 5 तत्व हमारे इस हाथों में होते हैं। तो अग्नि और वायु को ऐसे सम कर देना, 3 उंगलियां सीधी, और घुटने के ऊपर रखना, बिल्कुल घुटने के ऊपर। आपको मैं दिखा देता हूँ, सामने अगर कैमरा मेरा चेंज होता है तो सामने 2-3 लोग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमको। घुटने के ऊपर दोनों हाथ रखिए ऐसे करके सामने, और लंबा श्वास लेना और छोड़ना, लंबा श्वास भरना, कोई भी कर सकते हैं, धीरे धीरे श्वास भरना और धीरे धीरे निकालना, धीरे धीरे श्वास भरना, धीरे धीरे निकालना। ऐसे करते जाइए और सुनिए, करते जाइए, आंखें बंद करके सुनिए। ये साइंटिफिक प्रैक्टिस है, क्योंकि आम व्यक्ति श्वास लेता है तो उसका 500 से 600 ml ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब हम गहरा श्वास लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती है, 5000, 1000, मतलब 1 लीटर के आसपास ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। और आजकल तो ऑक्सीजन का सबको पता है कितनी कम ड्रॉप हो जाती है। अगर किसी की ऑक्सीजन 90 से नीचे आ जाए तो उसको प्रॉब्लम आती है, और 60 से नीचे चल जाए तो डेंजर एरिया में चले जाती है। अगर आप इसी टेक्निक को जो अभी आपको सिखा रहा हूँ, लंबा श्वास लेना और बाहर निकालना, केवल मात्र 10 से 20 श्वास के बीच में, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है, 10 से 20 श्वास आप ऐसे लेंगे। ऑक्सीमीटर लगा के चेक कर लीजिए, अगर आपकी ऑक्सीजन 80 के आसपास है
तो 95, 97, 98, 99 तक चली जाती है। ये हमने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। सब लोगों को एक बात का समझ लगी कि अगर किसी की भी ऑक्सीजन कम है, अगर आप उसको, हमने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो रोग लगते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट उसमें होता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे 10 से 20 श्वास लेता है तो उसकी ऑक्सीजन जो है वो 80 से 99 तक चले जाती है। अगर मान लो 60 से नीचे आ जाए फिर तो हमें कोई सपोर्ट सिस्टम लेना पड़ता है। लेकिन अगर अब 75 तक भी मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने कई लोगों को ऑक्सीमीटर लगा के चेक करके ये बढ़ा। तो ये आपने टेक्निक सीखी कि जब भी घबराहट हो, बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हमने क्या करना है, आंखें बंद करनी बड़ी जरूरी है और सीधे बैठना, रीढ़ सीधी रख के और करना है। देखो ज्ञान आपके पास है, दुनिया में बहुत लोगों के पास ज्ञान है, टीवी में बहुत सारा योग चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, किताबें भरी पड़ी। कहाँ पे कमी आ जाती है, करते नहीं है, सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, वर्णन भी करते हैं, बोलते भी हैं, दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये तो करने का विषय, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ऐसे आपने 10 श्वास अगर लेंगे, इसको बोलते हैं डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। इस वायु में परमात्मा ने सारी शक्ति दी। आप चाहे भोजन करें ना करें, पानी पिए ना पिए, कुछ भी ना खाएं, अगर आपको श्वास लेना आता है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। चाहे आप जितना मर्जी खाना खा लो, जो मर्जी अंदर डाल लो, लेकिन अगर प्राण नहीं है तो बेकार है। इसलिए इस टेक्निक को आपने सीखा, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। एक नॉर्मल व्यक्ति 16 श्वास लेता है 1 मिनट में। जब आप शुरू करेंगे तो ये श्वास जो है 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में निकालना, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड में लेना, 10 सेकंड में निकालना, फिर 20 सेकंड में लेना, 20 सेकंड में निकालना। तो आपके 3-4 श्वास 1 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, सबको समझ लगी, सबको पता चल गया होगा कि डीप एंड लॉन्ग का मतलब क्या। डीप का मतलब ऐसा इतना श्वास भरना कि हमारे फेफड़ों के सारे जो एयर सैक्स हैं वो पूरे के पूरे फैल जाए, और जो प्राण है, जो उस ऊर्जा है, ऑक्सीजन कह लीजिए आम भाषा में, ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल को मिल जाए। ऑक्सीजन ही फ्यूल है। जैसे गाड़ी चाहे मर्सिडीज है चाहे आम मारुति है, कोई भी, उसमें अगर डीजल पेट्रोल डलेगा तभी चलनी है। ये जितना भी बढ़िया है, अगर ऑक्सीजन होगी, फ्यूल होगा तो ही चलना है। तो ये आपको बताया कि डीप श्वास। लॉन्ग का मतलब ज्यादा टाइम लगाना भरने में, डीप एंड लॉन्ग। ठीक। दूसरी, आजकल बहुत लोगों को जितने भी आप रोग देख लीजिए, आपको एक बात समझ, इम्यूनिटी की कमी के कारण आते हैं। चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे ब्रोंकाइटिस है, रेस्पिरेटरी डिजीज बोलो। इसी तरह से यहाँ तक ये कोरोना है, इसमें भी आप देखिए, एड्स देख लीजिए, HIV एड्स देख लीजिए, सब में इम्यूनिटी डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से। तो हमने क्या करना है, ऐसे हाथों की मुट्ठियां बनानी है, ऐसे, इसको बोलते बस्ते का, जोश के साथ उत्साह, श्वास भरना लंबा, ऐसे करने से फेफड़ों में श्वास भर जाता है, और नीचे ऐसे, ऐसे अपने जो नॉस्ट्रिल्स हैं दोनों में श्वास भरना है और फेंकना है। कपालभाति आम तौर पर क्या होता है कि श्वास बाहर फेंकते जाते, इसमें हमने श्वास भरना है। और इस बात की निश्चिंत हो कि हम करते हैं, वापस आइए, रिलैक्स हो जाइए। इसके कितनी बार करना, 20 बार। 20 बार क्यों करना, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड चलता है ना, हमारे सिर के बाल तक जाता है, पैर के अंगूठे तक जाता है, हाथों की उंगलियों तक जाता है, तो उसमें एवरेज 20 सेकंड लगते हैं। ट्रेवल टाइम ऑफ ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज 15 to 20 सेकेंड्स। बॉडी का सब ना, छोटी बॉडी होगी तो जल्दी चला जाएगा, लेकिन एवरेज टाइम जो है, इसलिए 20 बार श्वास को लेना है। हर आसन में भी कहते हैं कि 20 सेकंड रुकना चाहिए।
कोई भी आप खाना भी खाना है तो धीरे धीरे खाना, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड जो है स्लो प्रोसेस से चलता है। इससे एक बात मैं ये प्राणायाम करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे बढ़िया ढंग से काम करेगा। दूसरी बात, आजकल बहुत लोगों को ना एक पेस मेकर होता है हार्ट में, छोटा सा जैसे कह लीजिए बैटरी टाइप होती है, छोटा सा बैटरी रहती है सेल जैसे, वो हार्ट में होता है, तो वो उसमें से करंट निकलता है तो हार्ट हमारा चलता है। हमने पीछे 4-5 पेशेंट्स को पेस मेकर जिनमें कमजोर हो गया उनको ठीक किया, किससे? इसी से, जो अभी टेक्निक एक बार फिर करिए, सब लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा अंदर होता क्या है। बस अब जिसने किया है उसको पता चलेगा, जो सुन रहे हैं वो करेंगे जब पता चलेगा। देखो ऐसा आनंद आता है। अब ये बात सुनिए, साइंस के साथ में ब्रीदिंग टेक्निक की, आंखें बंद हो गई, अंदर से सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन एंड मॉर्फिन, 5 हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी से निकलते हैं। और कहां से निकलते हैं? ग्लैंडुलर सिस्टम से, ग्लैंड्स से। सबसे बड़ा इफेक्टिव ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स, स्पोर्ट्स थायराइड ग्लैंड, स्पोर्ट्स थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक से गोनैड एंड अदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन बॉडी। वहां से सिक्रीशंस होती, सिक्रीशन, रस निकलते, रस। इसलिए आसनों पे लोग जोर देते हैं। योग शुरू होते हैं प्राणायाम से, ध्यान साधना से, पहले मन बनाने से, मन में दृढ़ता लाने से। 4 एक योग बातें की योगी में होनी चाहिए, उसमें एक दृढ़ता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन, फिर निरंतरता, फिर विश्वास, श्रद्धा, और चौथे नंबर पर समर्पण भाव, सरेंडर कर देना। किसी चीज का भी अहम अहंकार नहीं आना चाहिए, तब ये योग के पथ पर हम चल सकते हैं। निरंतरता में सोच लिया करना है तो करना ही है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। 365 के 365 दिन हम योग करते हो, करवाते हैं। नो हॉलीडेज ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, दिवाली, दशहरा, कुछ नहीं। अब सुबह हम 5 बजे से लेकर अभी देखो 10 बजे 5 घंटे से योग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। परमात्मा की कृपा से सरेंडर कर देते हैं, तो उन्हें करवाना है बस। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया? अभी लंबे गहरे श्वास बताए, ये भस्त्रिका की टेक्निक बताई, वो टेक्निक बता दी। तीसरा, आपको ये बॉडी जो है ना, इसको चलाने के लिए जितने सेल्स इस बॉडी में, इससे 10 गुना जो कह लीजिए बैक्टीरिया वायरस हमारा बाहर से मदद करते हैं, हमारे 10 गुना ज्यादा वो हमारे घर में, हमारे बॉडी में घर बनाते हैं अपना। और वो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, कहाँ रहते हैं? हमारे पेट वाले हिस्से में, जिनको माइक्रोब्स बोलते हैं, माइक्रोब्स। पेट वाले हिस्से में उनका घर है इम्यूनिटी का। और पेट में हम ज्यादा खाना ठूस लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हिलाते नहीं है, इसलिए पेट में रोग पैदा होते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं शायद फेफड़ों में इम्यूनिटी है, फेफड़ों में नहीं है। फेफड़े तो सपोर्ट करते हैं, कहां पर है? पेट वाले हिस्से में। तो उसके लिए प्राणायाम है कपालभाति। कपाल का मतलब होता है जो खोपड़ी वाला हिस्सा, कपाल। भाती का मतलब चमकाना, ग्लो करना। इसमें ग्लो कैसे आता है? चमक, ग्लो का मतलब ये नहीं शाइनिंग होने लगे। ग्लो मीन्स हमें सही सोच आएगी, हमारी सोच बहुत महीन होगी, तीखी होगी, बारीक माइन्यूटली हम सोचेंगे, क्रिएटिव होगी, ऑप्टिमिस्टिक, कंस्ट्रक्टिव हमारी सोच होगी। उसको कहते हैं ग्लो करना, भाती। तो मल द्वार को ऊपर को खींच के, जिसने खाना ना खाया हो वही करे ना, खाली पेट ही करना होता है, एम्प्टी स्टमक। तो मेरा ये सेमिनार चल रहा है, वो काफी लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये चल रहा है। तो चलिए ऐसे श्वास बाहर है करिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत से लोग कह लीजिए कि 40% लोग जो है डायबिटिक है पूरे वर्ल्ड में। 40% डायबिटिक है ना। हार्ट तो 60 के आसपास है ना।
और रेस्पिरेटरी डिजीज कितने ज्यादा, कैंसर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहाँ से जन्म होता है, पेट से। महर्षि पतंजलि ने 6 छठ क्रिया बनाई है, उसमें धोती है, बस्ती है, नेति है, नौली है, त्राटक है और 6वें नंबर पर कपालभाति है। आप वो 5 नहीं कर सकते तो कपाल, जैसे नहा धो के बाहर से साफ हो जाते हैं ना, तो ये श्वास बाहर फेंकने से, कपालभाति से हम बॉडी को शुद्ध करते हैं। 1 सेकंड में 1 बार करना है और चेहरा हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। कितनी बार करना है? 2 मिनट से लेकर आधा घंटा 15 मिनट तक किया जा सकता है। जो भी करेगा उसके पेट के रोग, जैसे अभी सुबह ही हमें एक बंदा बता रहे थे, सिस्ट जो है 5 सिस्ट डिसॉल्व होगी कपालभाति करने से। 5 सिस्ट, जिसको बताया गया था ऑपरेट कराएंगे तो इसकी डेथ हो सकती है। उसने 2 साल लगातार 15 से 20 मिनट ये किया, 2 साल लग गए, 5 सिस्ट डिसॉल्व। किडनी में स्टोन है तो खत्म, यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है तो खत्म कपालभाति से, और फिब्रॉइड्स है लेडी में तो खत्म। और एक मैंने पढ़ के नहीं ना किसी से सुना है, मैं करवाता हूँ, लोग मेरे को बताते हैं, रिपोर्ट्स लेके आते हैं। कपालभाति से प्रोस्टेट 100% क्योर। क्या करना पड़ेगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हमारे से योग करते हैं, यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, प्राइवेसी रहती है। प्रोस्टेट उन्होंने 10 मिनट रोज करने से, पिछले साल अगस्त से कर रहे हैं, प्रोस्टेट 100% ठीक। अस्थमा पंप लेते से, ऐसे 3 पंप रखे होते थे साथ में अस्थमा के, वो पंप ठीक, प्रॉब्लम बढ़ जाए तो अब एक भी पंप नहीं लेते। भूख नहीं लगती तो भूख लगती है, भोजन पचता है, नींद बड़ी आती है ना। ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक, तो तीसरा प्राणायाम मैंने सिर्फ लेडीज को पीरियड्स के दिनों में नहीं करना है, किसी ने ऑपरेट कराया तो उसने नहीं करना है, किसी को हर्निया है तो उसने कपड़ा बांध के करना है। ये 3-4 उसकी प्रिकॉशंस है। किसी को बहुत हाई बीपी रहता है तो उसने धीरे करना है, तो ये ठीक हो जाता है। इससे हमारे जो मैंने मोटे मोटे रोग आपको बताए, जैसे शुगर है 448 से शुगर जो है 80-90 आई, 448 से शुगर 3 दिन में कितने पर आ गई, 80 से 90 के बीच में। ये पिछले थोड़े दिन पहले हम फिलौर में पुलिस अकेडमी में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर लोगों ने ऐसे किया और अभ्यास बाद में उन्होंने अपना रिजल्ट हमें फोन करके बताते, रिपोर्ट्स भी दिखाते। और अब सुबह की बात है, एक बंदे का ब्लड प्रेशर 170-180, नीचे वाला 130-40 रहता था। वो कहता मैंने कितने जोर लगा के देखिए, फिर बीच में कोरोना आ गया, 1 साल का गैप पड़ गया। फिर उसने हमारे सामने कहता अभी 6 अप्रैल से क्लास लगाई, 6 अप्रैल से आज तक उसने किया। आज सुबह अपने आप उठ के बोलता कि मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, 123-24 और नीचे वाला 80 के आसपास आ गया है, सिर्फ ये 15-20 दिन का योग करने से। चलिए 3 प्राणायाम आपको सिखाए, गहरे लंबे श्वास, उसके बाद में भस्त्रिका और ये कपालभाति। मैंने आज चौथे नंबर पर प्राणायाम जो है, जब हमारी बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। जब देखिए जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है तो हमारी बॉडी सबसे पहले गर्म होती है, हीट अप होती है, जिसको बुखार बोलते हैं, जिसको फीवर बोलते हैं। ठीक, तो उससे हम बच सकते हैं कपालभाति से। रोज हमारी बॉडी गर्म होती है। फिर इसको टेम्परेचर कम करने के लिए अनुलोम विलोम के लिए ऐसे हाथ की पहली 2 उंगलियां मोड़ के ना, अंगूठा सीधा ऐसे रख के, और अंगूठा रखना अपनी राइट साइड में, राइट साइड में, और लेफ्ट से श्वास लेना, बहुत धीरे से लेना। कई लोग ऐसे तेज श्वास लेते हैं। प्राणायाम बहुत धीरे से करना है, न नाक टेढ़ा करना है, न तेज आवाज करनी है, बहुत धीरे से गहरा ठहरा अभ्यास करना है, आराम से श्वास लेना है। लेफ्ट से लेना, राइट से बाहर, राइट से लेना, लेफ्ट से बाहर।
अगर हम इसको 5 मिनट से 15 मिनट करते हैं, गारंटी है, फायदा क्या है? आप करते रहिए, 2 मिनट करिए, मैं आपको बताता हूँ। सिर दर्द 100% ठीक, आई साइट वापिस, ENT के बीमारियां ठीक, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। लॉकडाउन में कितने लोगों को डिप्रेशन हुआ। 3 सैटरडे को कोई बंदे, किसी ने हमें बुलाया, उनके घर में फादर को डिप्रेशन, मदर को डिप्रेशन, हस्बैंड को डिप्रेशन, बच्चे रह गए बस, बच्चे और पत्नी लड़ रहे हैं देखो डिप्रेशन के साथ। ढूंढा नेट से कि योग से ठीक हो सकता है, दवाइयां 6 महीने से खा रहे हैं, अपने घर को के दरवाजों को हाथ नहीं लगाते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते हैं, किसी को मिलते नहीं है, किसी को आने नहीं देते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं। इतना डर बैठ गया हमारे अंदर, मरने के डर से जीना ही छोड़ दिया। जीना थोड़ा छोड़ना है। तो ये अनुलोम विलोम करते 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 डिप्रेशन से बंदा बाहर चढ़ती कला में आ जाते हैं। पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बोला पहले स्टार्टिंग में, और उत्साह आता है, जीने की एक आस जागती है। ये तो साइकोलॉजिकल फायदे बता रहा हूँ। माइग्रेन है, सिर दर्द है, ठीक होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, पक्की गारंटी। योग में कोई गारंटी, किसी चीज में कोई गारंटी नहीं देता हेल्थ प्रैक्टिशनर। हम इसका पक्का विश्वास देते हैं। हो सकता है समय किसी को 10 दिन लग जाए, किसी को 15 दिन लग जाए, और किसी को महीना लग जाए, लेकिन होगा ठीक। जो भी योग की शरण में आया है वो बंदा ठीक होगा ही होगा। ये तो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम धड़ल्ले से बोलते हैं, कोई चैलेंज नहीं है ना। लेकिन एक विश्वास है, अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी ऋषियों की, अपने पूर्वजों की, अपने गुरुओं की प्रैक्टिस के ऊपर विश्वास है। चलिए, ये प्राणायाम अभी वापिस आ जाइए। लेफ्ट से शुरू करना, लेफ्ट से ही निकालना। अब लास्ट वन जो है प्राणायाम का, फिर अभ्यास पूरा कर दूंगा मैं। 5वीं जो टेक्निक है वो है स्मृति के लिए, अपनी मेमोरी के लिए और मेंटल पीस के लिए, उसको बोलते हैं भ्रामरी। उसमें सामने मैडम कर रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, यहाँ थोड़ा कैमरे में नजदीक रहेंगे तो दिखेगा उनको। तो आपने क्या करना है, 2 उंगलियां अपनी आंखों पे रखनी, पहली 2 उंगलियां, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी ठोटी पर, कान बंद कर लेने मुट्ठे से, श्वास भरना है और हमिंग साउंड करना है। वापस आइए। ऐसे हमने 4-5 बार करना है। जिसको नींद ना आती है, देखिए नींद नहीं आ रही है, परेशान है, तो ऐसे करें। बच्चों को पढ़ते समय याद नहीं रहते, जब पेपर आते हैं ना पहले तो याद रहते हैं, पेपर के समय भूल जाते हैं। तो रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना है ना। और रिटेंशन जो है, रिटेंशन की कैपेसिटी, ये साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, मेमोरी में आती है। मेमोरी में रिटेंशन है, रिकॉग्निशन है, रिकॉल है। तो ये फैकल्टी जो है हमारे माइंड की, वो हमारी एक्टिवेट होती है अगर हम इस प्राणायाम को, भ्रामरी को, हमिंग साउंड को करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 5 प्राणायाम को सिखाए। सबसे पहले गहरे लंबे श्वास, दूसरे नंबर पर भस्त्रिका, तीसरे नंबर पर कपालभाति, चौथे नंबर पर अनुलोम विलोम, 5वें नंबर पर भ्रामरी, और लास्ट में उद्गीत प्राणायाम, प्राणायाम की श्रृंखला में, उसमें हम ओम का जाप करते हैं। ओम एक ऐसा शब्द है जिससे हमारे 7 चक्र जो रीढ़ पे है, चक्रों का मतलब जहां जहां पर नाड़ियां के गुच्छे हैं, जैसे एक नदी जा रही है, वो साइडों में अगर जानी है तो वहां पानी ऐसे घूमता है, फिर ट्रिब्यूटरी बनती है, सभी तरफ वो पानी जाता है। इसी तरह से ऊपर से एनर्जी आ रही है हमारे सिर में, सिर से नीचे जाते हुए वो 7 हिस्सों पे जाके ऐसे ऐसे घूमती है, उसको चक्कर बोलते हैं। इनके नाम है, जो डिटेल है, काफी लंबी डिटेल है। तो फिर वहां से हमारे हार्ट को, हमारे फेफड़ों को और पेट वाले हिस्से को, टांगों को, सब तरफ को एनर्जी जाती है। तो उसमें ओम शब्द बड़ी मदद करता है।
इसका एम्स के पेशेंट पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि मैंने पीएचडी भी इसी पे की है, मेडिटेशन पर डॉक्टरेट हूँ मैं, नेचुरोपैथी में डॉक्टर हूँ मैं, और तो उसमें सारी रिसर्च करके ये निकला है कि ये केवल मात्र 6 मिनट अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम ठीक रहती है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आजकल न्यूरो जो प्रॉब्लम है उनको ठीक किया जा सकता। तो हम सिर्फ यहाँ पर 3 बार करेंगे, करना बस हृदय से है। 2 रेशो 1 रखना, 2 में आ और उ और आ और लास्ट में माँ, ठीक है। आकार, उकार और माकार। माकार इसको संस्कृत में माकार बोलते हैं। माँ जो है वो 1 रेशो है, और पहले 2 जो है 2 भाग जो है वो आ और उ है। शुरू करते हैं। इसके बाद में मेडिटेशन रहता है। मेडिटेशन में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिंपल मेडिटेशन होता है। अपनी श्वास जो आ रही है जा रही है, जो नॉर्मल चल रही है, जिसको हम छेड़ते नहीं है, ना लंबा ना गहरा, उसको देखना होता है। श्वासों को देखना, आती जाती श्वास को देखना। ऐसे टिक के बैठते हैं, श्वास हमें दिखने लग जाती है, फील होती है, श्वास हमारे अंदर आ रही है जा रही है। उससे मेडिटेशन करने से हमारी आत्म बल बढ़ता है, आत्म बल, स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। पहले आईक्यू चेक किया जाता है, आपको पता होगा, आजकल भी चेक करते आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट। उसके बाद में ईक्यू चेक करने लगे, इमोशनल कोशेंट। अब एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट भी चेक किया जाता है। सत्य को जानने की कितनी हमारे में उत्कंठा है, तड़प है, जीवन के रहस्यों को जानने की कितनी हमारे अंदर प्यास है। तो ये उसको बोलते हैं एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट चेक करना। उसके अलग अलग टेस्ट हैं, साइकोलॉजी में आते हैं। तो चलिए, ये श्वासों को देखना का ध्यान है, फिर अपने संकल्पों को देखना। फिर सिंपल सा ध्यान होता है, आप खुले आकाश में बादलों को देखिए, चांद सितारों को, उसको त्राटक ध्यान बोलते हैं। आप कभी छत पे चलिए, खुली जगह में चलिए, तारों को देखिए, थोड़ी देर आपका मन शांत होगा। उगते हुए सूर्य को देखिए, छिपते हुए सूर्य को देखिए। ये योग के एक कह लीजिए भाग है ध्यान, ठीक। तो ये हमने थोड़ा आपको प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र सारा सिखाया। अब ये समय जो है आपने जो दिया है 10-20 हो गए हैं, और 40 मिनट आपका सिर्फ प्राणायाम हो पाया है। एक मैं छोटी सी 2 क्रियाएं बता दूंगा। मैडम सुखासन में बैठ जी, सामने आप देखेंगे जिनको सर्वाइकल है, कंधों में दर्द है, ये वाले हिस्से में चक्कर आते हैं, ऊपर ऑक्सीजन नहीं जाती है, उनके लिए सामने आपको मैडम दिखा देंगे। छोटी सी क्रिया है, 100% सर्वाइकल वाला जो रोग ठीक होता है। तो दोनों हाथों की उंगलियां आगे करिए, हाथों की उंगलियों को जोड़ लेना, कंधों के ऊपर रख लेना, दोनों बाजू ऊपर ले जाने, कोहनी कलाई ऊपर जाके जोड़ लीजिए, ऐसे सीधा ऊपर रखिए। सामने आप देख भी रहे होंगे, मैडम आपको करके दिखा रहे हैं। आंचल जी और सुखविंदर जी और हरिंदर जी सामने बैठे हैं। फिर धीरे धीरे पीछे से घुमाना, बड़ा चक्कर बनाना, बड़ा नीचे भी लाना सर, नीचे भी लाना। यश बग्गा जी, नीचे भी लाना है, नीचे। और सामने देख लीजिए मैडम, नीचे पसलियों के साथ, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर आगे, ऐसे बड़ा चक्कर बनाना। कहते मैं अभी कपड़े ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं, किस दिन आपके वहां अलग से करवाएंगे। तो ये बाकी मैंने तो अभी पता नहीं आप कितने लोग आपके कर रहे हैं, मेरे को अभी यहाँ शो नहीं हो रहे। तो चलिए, इससे 4-5 बार करने से ठीक हो जाता है। बाकी एक घुटनों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, टांगों में दर्द रहती है, उसके लिए छोटा सा आपको सिखा देंगे। मैंने टांगें सीधी कीजिए सर अभी अराउंड 135 लोग हैं जो ऑनलाइन आपके साथ कर रहे हैं।
Dr. Vinod ji, around 150 plus students and faculty members, they are attending your session. और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने हमारी सुबह बहुत ही हल्की कर दी और जैसे आपने शुरू से बताया एंड तक कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द ब्रीदिंग एक्टिविटीज, जो ब्रीदिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हम उसको मैनेजमेंट की थ्योरी में कई बार कह देते हैं कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, जब आपको हल्का सा भी पैनिक हो या कुछ हो तो 2 मिनट अगर आंखें बंद कर लीजिए और अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो कर दीजिए, डेफिनेटली यू आर हैविंग लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज इन योर माइंड। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में आप इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके बाद आपने कपालभाति, भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम सारे एरियाज में बताया, लेकिन द माइंडसेट और जो आपने 3 क्वेश्चन बताए हैं, दैट इज IQ, then further emotional quotient and then spiritual quotient. आज की डेट में हर इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में for hiring and all that, all these criteria are being considered. और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत ही कंपाइल्ड वे से बताया कि आप सनराइज को देख रहे हैं, सनसेट को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं। तो नेचर को एक अपने आंखों से देखना और अपने माइंड को में ठहराव लेके आना, ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसके साथ में 1-2 क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल में, 1-2 स्टूडेंट्स ने, कुछ अटेंडीज ने पूछे भी हैं, जिसमें एक ने मेंशन किया है, हाउ इज योगा डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेचिंग और अदर काइंड्स ऑफ फिटनेस, कि स्ट्रेचिंग और योगा में आपस में क्या अंतर है अलग तरह की फिटनेस में। डॉक्टर विनोद जी मेरे ख्याल में डिटेल में बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से stretching, it is also very essential part कि when to start any of the activities, any of the yoga exercises। वो मेरे को याद है कि 5-6 साल पहले, 10 साल पहले हमने एक प्रैक्टिस शुरू की थी। जैसे अभी विनोद जी ने बताया कि लंबा चक्कर बनाना है, वो अभी मेरे पास चक्कर नहीं बन पाया क्योंकि आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर। तो डेफिनेटली व्हेनेवर ही इज गोइंग टू विजिट आवर कैंपस तो हम इनसे और एलैबोरेटिव वे से सीखेंगे कि पैरों से पहले एक चक्कर बनाओ, फिर अपने आप नीज के पास एक चक्कर बनाओ, फिर उसके बाद कमर के आसपास से बड़ा चक्कर बनाओ, फिर कंधों पे चक्कर बनाओ, फिर गर्दन पे, ऐसे इस तरह से एक्सरसाइज करते करते यू आर एबल टू वार्म अप योर बॉडी। तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट एनी ऑफ द एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग, ओम उच्चारण, डेफिनेटली ऑल एवरीथिंग हेल्प्स अ लॉट। डॉक्टर जी एक क्वेश्चन और पूछा है कि सर कैन यू टेल अस एनी आसन फॉर थायराइड एंड प्रिकॉशंस आल्सो। तो ये पहला क्वेश्चन स्ट्रेचिंग बाकी कैसे डिफरेंट है, और ये थायराइड के लिए अगर आप कोई अच्छा सा आसन बताएं और उसके बारे में कुछ सावधानियां एंड प्रिकॉशंस आल्सो, वन अटेंडी इज आस्किंग फॉर दिस, इफ यू कैन एलैबोरेट। इसमें पहला सवाल जो है स्ट्रेचिंग और कैसे डिफरेंट है योगा और से, है ना। आज सुबह भी मैं बता रहा था किसी क्लास में, देखिए मान लीजिए आप जिम में जा रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आपकी आंखें खुली है, पहली बात। दूसरा, आप शरीर को खींच रहे हैं, ठीक है, शरीर को स्ट्रेच कर रहे हैं और आप फिजिकल लेवल पर ही टिके हुए हैं। स्ट्रेचिंग करते करते आप इससे आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब आप योग करते हैं, कभी भी योग आंखें खोल के नहीं किया जाता, किसी को देखा नहीं जाता। स्ट्रेचिंग करते हम दूसरों को देखते हैं कि वो इतना आगे चला गया, मैं भी जाऊं। सैर करते हुए बंदा बातें भी करता है, स्ट्रेचिंग करते समय बातें भी करता होता है, लेकिन इट इज मोर देन स्ट्रेचिंग। इसमें आपका ध्यान श्वास को अंदर भर के रोक के, अगर बढ़िया प्रैक्टिशनर जो है ना टॉप क्लास के होते हैं वो ऐसे करते हैं, श्वास इनहेल करके बॉडी को खींचते हैं, उसके बाद में माइंड को वहां लेके जाते हैं जहां पर प्रेसिंग और स्ट्रेचिंग हो रही है। मसल्स ऑन बॉडी और माइंड की टॉक होती है उस समय, और इन तीनों को, बॉडी को, श्वास को और मन को देखने वाली आत्मा, स्पिरिचुअल, आप सेल्फ जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ तीनों को देखती है। ये गहरा इतना फर्क है। और स्ट्रेचिंग में अंदर के अंगों की हीलिंग नहीं होती, सिर्फ हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। और योगा में हमारा जो सिस्टम्स का उसको बहुत ही इंटरमिंगल सिस्टम है, जैसे 5 अंग हमारे एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। उसमें हार्ट है, लिवर है, किडनी है और हमारा ब्रेन है और प्लस जे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें 5 सिस्टम्स
तीनों शरीर, श्वास और मन और आत्मा, इनका कॉम्बिनेशन होता है। पहले सवाल का जवाब ये था। दूसरे का थायराइड के लिए मैं आपको अभी, मैं हैरान होता हूं जब लोग हमें बताते हैं 26 साल से चल रहा थायराइड ठीक होगा भी, किसी डॉक्टर का 26 साल से चल, जिन्होंने 200 mg की गोली पर पहुंच चुके थे, 25 से शुरू की थी, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, और उसमें कुछ आसन है, जैसे अगर हमारा शीत तैयार हो, गर्दन को ऐसे ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, गोल घुमाना, फिर सिंह आसन है, जीभ बाहर निकाल के ऐसे करना, है ना, 4-5 बार। उसके बाद में उज्जयी प्राणायाम होता है, जो आम आपको टीवी में देखने को मिलेगा, जो लोग सिखाते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं है। जो ऋषियों ने बताया, वो क्या कहते हैं कि जीभ को तालू के साथ लगा के, गले को ऐसे दबा के थोड़ा सा ऐसे आपने 5 से 15 मिनट करना है। अभी मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन खालसा कॉलेज के, एमजीएन कॉलेज के प्रोफेसर थे, एमजीएन कॉलेज के, क्योंकि हम बोलने का काम है प्रोफेसर का, तो गला बैठ गया। डॉक्टर ने बोला 1 साल तक आपने बोलना नहीं है, 1 साल तक, और नहीं बोले। उसके बाद में फिर भी ठीक नहीं हुए। फिर उनको कहीं से पता चल गया, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो, किसी की प्रॉब्लम है, तो बंदे को लगता है ये बंदा ठीक कर सकता है, योग ठीक कर सकता है, तो आए हमारे पास, उन्होंने ये थायराइड का किया, ये गला ठीक हो गया। अब वो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है किसी जगह पे, नाम मिलता है। तो इस तरह से प्रिकॉशन, तीसरा सवाल था प्रिकॉशन। पहले नंबर पर खाली पेट करना है। लेडीज को पीरियड्स के दिनों में सिंपल प्राणायाम कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करना। ऑपरेशन हुआ तब भी नहीं करना। प्रेगनेंसी है, स्टार्टिंग वाले डेज हैं, जैसे मंथ्स हैं, उनमें नहीं करना, एंडिंग वाले में नहीं करना, बीच वाले में किया जा सकता, वो भी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपर्ट। और हर्नियों में थोड़े से निषेध होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है तो श्वास ना रोकना है, रोकना नहीं श्वास कहीं भी, बस सिंपल श्वास के साथ करते जाना है, ऐसे थोड़े से निषेध रहते हैं। और जहां पर पोल्यूशन है उस जगह पे नहीं करना है, बंद कमरे में बिल्कुल क्लोज्ड नहीं करना है, ओपन में करना है। और ग्राउंड हमारी समतल होनी चाहिए, कपड़े हमारे लूज होने चाहिए, जैसे सर ने भी बताया, कपड़े लूज होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और खाना ना खाया, मान लो अगर आप सुबह नहीं कर रहे, शाम को करना है, तो 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए खाली पेट, तब हम कर सकते हैं। और कोशिश करो कि पहले किसी को क्लास में जाके किसी से सीखो, फिर सेल्फ प्रैक्टिस करो। विनोद जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और टाइम की आज लिमिटेशन भी है। तो मैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के जो इंचार्ज हैं, कन्वीनर हैं, मिस्टर अवनीत देवरा जी, उनसे भी मैं अनुरोध और रिक्वेस्ट भी करूंगा, और यूथ क्लब के करमन वालिया हमारे एमबी के स्टूडेंट हैं, जो दे आर टेकिंग केयर ऑफ यूथ क्लब ऑफ आवर कैंपस, तो इनसे अनुरोध करूंगा कि एक सेपरेट सेशन भी करवाया जाए। मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। तो देवरा जी, मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि अगर सर की ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर अगर बच्चों से, अगर विनोद जी अलाउ करें, तो दैट कैन बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो 4-5 क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूं जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। थायराइड पे तो मेरे ख्याल में सर ने बता ही दिया, एंड प्रिकॉशंस आल्सो। उसके बाद है कि सर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेडिटेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एंड हाउ लॉन्ग वी शुड डू इट फॉर बेटर रिजल्ट, कि अच्छे नतीजों के लिए हमें कितनी देर के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। दिस इज वन क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस, one question is asked by students, sir, kindly tell asan for disc problem and asan shwas प्रक्रिया फॉर डायबिटीज पेशेंट। तो मेरे ख्याल में ये अलग से 5 से 10 मिनट आंसर के लिए चाहिए होंगे विनोद जी को। उसके अलावा वन क्वेश्चन इज बाय आवर फैकल्टी, what precautions should be, by Rohit Verma, what precautions should be taken for a person doing yoga with BP problem? योगा करते समय बीपी के पेशेंट को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एंड वन क्वेश्चन बाय शिवांग द्विवेदी, सर, कैन योगा क्योर द प्रॉब्लम ऑफ आर्थराइटिस? तो अगर सर शॉर्टली, अगर विद इन 5 मिनट्स अगर आप
ब्रीफ में अभी आंसर करें तो मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया होगा। बट मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के कन्वीनर देवरा जी और यूथ क्लब के इंचार्ज करमन वालिया कि लेटर ऑन बाय सीकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी वी कैन प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी कैन अरेंज वन मोर सेशन ऑन सम अदर डे, तो वो और भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो विनोद जी अगर ब्रीफ में अगर आप आंसर क्वेश्चंस के करें। हमने केएमबी कॉलेज के साथ हमने उधर ये जो खालसा कॉलेज तो रहा और इधर लुधियाना में फिरोजपुर में बड़े लोगों का 2-2, 3-3 दिन का शिविर लगाया, क्योंकि जो इसके सारे एस्पेक्ट ज्यादातर प्राणायाम और आसन और एक सेशन क्वेश्चन आंसर का पहले हम करवा देते होते हैं, फिर क्वेश्चन वो हमें मेल कर देते हैं, जो व्हाट्सएप कर देते हैं और सारे क्वेश्चन पहले उसकी तैयारी करके जैसे कह लीजिए भी टाइम नहीं वेस्ट होता तो वो चलता है। That is wonderful. 100% ठीक होता है योग से। और जैसे ब्लड बीपी का बोला, बीपी अगर हाई बीपी है तो आप थोड़ा धीरे धीरे स्लो करना है। कभी भी पावर योगा तेज योग जो करते हैं तेज कराते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है, आराम से जो ऋषियों ने सिखाया वो योगा करना है। मैंने आज बताया ना सुबह भी ब्लड प्रेशर किसी का ठीक हुआ 10 दिन के अंदर। तो इसी तरह से जो जो सवाल आ रहे हैं वो आप अलग से सेशन ले लीजिए किसी दिन, उस दिन फिर हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आसन डायबिटीज शुगर मैंने बताया 448 से 80 के आसपास आ गई तो आसनों का सेशन होगा। अगर ये प्राणायाम करें ना कपालभाति अनुलोम, देखो एक बात समझिए कि जो डायबिटीज है शुगर है वो बीमारी किस चीज की है, इनडाइजेशन की है। शुगर ब्लड में है लेकिन वो सेल में एंटर नहीं हो रही, ब्लड में घूमती जाती, पची नहीं है। पेट में कुछ मीठा या कुछ भी अनाज गेहूं जिससे भी शुगर बनते हो खाया वो ब्लड में चला गया, ब्लड स्ट्रीम से हमारे ऑर्गन्स के सेल्स में वो एंटर नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन हमारी पैनक्रेटिक ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट ना होने का होता है, इसलिए उसमें कपालभाति अगर प्राणायाम करते हैं आप, कपालभाति से शुगर जल्दी ठीक होती है और ब्लड प्रेशर से ऑक्सीजन में अग्नि होती है, आग से जो एक्स्ट्रा हमारी शुगर है वो जल जाती है, तो प्राणायाम से ठीक होता है। बाकी आसन है तो वो आपको नेक्स्ट सेशन जब भी आप अपने कर्मन और अपनी जी हमें बताएंगे तो हम उसमें आपको करेंगे, लेकिन आपको 1 घंटे का सेशन क्योंकि मेरी अभी फिर से कहीं सेशन है 11 बजे मैंने पहुंचना है, तो मैं चाहूंगा कि आप अलग से दोबारा से हमें मौका दें। हमें खुशी होती है आप लोगों से, सर से राजेश बग्गा जी से तो हम फेस टू फेस मिले हुए एक बार, है ना आपके ऑफिस में। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत अच्छा लगा। और दे दीजिए कि हम जरूर आपके लिए बने हैं, हमारा जीवन सेवा में समर्पित है। 24 घंटे हम योग सिखाते हैं, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन कॉलेज जाता हूँ मैं यहाँ पर प्रिंसिपल, तो थोड़ी देर के लिए जाना पड़ता है, बाकी इसी सेवा में आप जब भी आप कहेंगे हम जरूर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं अनुरोध करूंगा कन्वीनर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के कि फॉर वोट ऑफ थैंक्स और करमन वालिया जी। थैंक यू डॉक्टर विनोद जी, आपने थोड़े समय में हमारी रिक्वेस्ट को माना और बहुत ही जल्दी अपनी सेवाओं के लिए आपने हाँ बोल दिया। आपके बहुत ही वैल्यूएबल टाइम से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं तहे दिल से अपनी डायरेक्टर जी से तरफ से, अपनी फैकल्टी फ्रेंड्स की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और मैं लास्ट में गायत्री मंत्र के साथ इसका थोड़ा सा इसको एंड करेंगे। तो प्रॉमिस कर दीजिए जाते जाते अगली बार सेशन कराएंगे आप जल्दी सर, जल्दी से जल्दी सर, डेफिनेटली, जैसे कि डायरेक्टर सर ने आपको बोल दिया जोड़ा है आप लोगों से। हाँ जी सर, कर्मन विल टेक केयर ऑफ। सर मैं चाहूंगा कि इसमें हम गायत्री मंत्र के साथ इसको थोड़ा सा एंड करते हैं। और ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। डायरेक्टर सर आप करिए जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
Thank you, sir. Thank you, Director sir. Thank you, So Vinod. there are so many powerful mantras that can be orated and one can get really very good results. मैं क्वेश्चन बता देता हूँ. क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा आए हुए हैं कि ड्यू टू लॉकडाउन वर्क स्पेस यूजिंग लैपटॉप और मोबाइल सजेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर आईज. तो देवरा जी आपकी ड्यूटी है ये सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके आपने आगे हैंड ओवर करने हैं सो दैट वी कैन गेट appropriate answers for the same. Thank you so much, Vinod ji, once again for joining with us. On behalf of APJ Institute of Management and Engineering, a big thanks to you. Thank you so much once again. Thank you all. Thank you all.